हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए प्रयोग के साथ। सो अवर न्यू एक्सपेरिमेंट इज इफेक्ट ऑफ सेट और एटीट्यूड ऑन परसेप्शन। बिफोर conducting experiment, we have to formulate a problem. So what is our problem in this experiment is to study the effect of set or attitude on the perceptual process. After the problem, we need to formulate hypothesis. हमें उपकल्पना बनानी होती है। कई जगह हिंदी में हाइपोथेसिस को परिकल्पना भी लिखा होता है। कमोबेश दोनों चीज एक ही है। अगर आप गहराई से हिंदी में जाते हैं तो थोड़ा अंतर है, लेकिन मनोविज्ञान या प्रयोग की भाषा में हम दोनों परिकल्पना और उपकल्पना को हम लिख सकते हैं। तो इस प्रयोग में हमारी उपकल्पना क्या होगी? हमारी उपकल्पना है अनिश्चित सेट की अपेक्षा निश्चित सेट का जो प्रत्यक्षीकरण है वो जल्दी होता है, उनके जो रिस्पॉन्सेस हैं वो ज्यादा करेक्ट होने की संभावना होती है और सरल होता है, इजी होता है। हाइपोथेसिस के बाद नंबर आता है चरों का, वेरिएबल्स का। तो इसमें हम मुख्य रूप से दो ही वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे? हमने जो दो लिस्ट बनाई है, यानी सर्टेन और अनसर्टेन, निश्चित या अनिश्चित सेट हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या होगा कि इन निश्चित और अनिश्चित सेट को देख करके जो प्रयोज्य, जो पार्टिसिपेंट रिस्पोंड करेगा, जो उसकी प्रतिक्रिया होगी, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसके बाद सम इंपोर्टेंट experimental controls. So what will be these controls? The Hindi medium students can just rewind this video and can check out the important controls or महत्वपूर्ण नियंत्रण in the previous slide. So here let me discuss in detail the important experimental controls we need to do, because controls helps in refining our results. There is a minimum variance or interference due to the external variables. So in that process, we try to control various variables, and all those process is known as the experimental control. The first one, the anagram list, which we had prepared earlier, is not shown to the participant prior to the experiment. And the second control is, after each anagram, the participant was given a 2-minute rest and all anagram lists were covered properly, so that participant cannot see what is already written on the anagram list. Before starting the experiment, the participant was categorically and clearly told what the list 1 contains. It contains the common anagrams, and list 2 contains the name of the known objects and things. So these instructions are to be clearly and with emphasis it has to be told to the participant. Why? Because we want to create a certain or uncertain set in the participant's mind. So first list contains the common anagram, and you must clearly tell to the participant that second list contains name of the common objects or the things or the person. The most important one is the letters of the anagram were same in each anagram. Then all the anagrams were shown to the participant maximum for the 30 seconds, and participants' response as well as the reaction time was noted in the given sheet. So these are very important controls, and these controls you have to practice
before conducting this experiment in your laboratory. Next, some very important instructions for the participant. यानी प्रयोज्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। पहला निर्देश कि मैं आपको तैयार होने के लिए एक संकेत दूंगा, जैसे रेडी, तो आप मेरा संकेत सुनते ही तैयार हो जाइए। रेडी संकेत के सुनते ही मैं आपको आपके सामने एक एनाग्राम डिस्प्ले करूंगा। आप उसको देख करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। जैसे आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया TEIK, इसका एक आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो यह हो जाएगा काइट, KITE। इसी तरह से मैं आपको एक के बाद एक एनाग्राम दिखाता चला जाऊंगा, और हर एनाग्राम के लिए जैसे मैंने आपको बताया 30 सेकंड आपको मिलेंगे। 30 सेकंड के अंदर आपको ये रिस्पॉन्स करना है कि इसके क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। और आपको पता है कि हर एनाग्राम के बाद आपको मैं 2 मिनट का रेस्ट दूंगा, आराम करने के लिए मौका दूंगा। इस तरह से हम 2 लिस्ट मेरे पास है, उन दोनों लिस्ट में 10-10 एनाग्राम्स हैं, और हम दोनों लिस्ट कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही एक लिस्ट पूरी हो जाएगी तो दूसरी लिस्ट जैसे ही मैं शुरू करूंगा आपको वो बता दूंगा कि इस लिस्ट में कौन से एनाग्राम है। कौन से का मतलब वो कॉमन एनाग्राम्स है या वो किसी के नेम है, ऑब्जेक्ट्स के, किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु का नाम है उसमें। कि जो भी लिस्ट मैं शुरू करूंगा वो पहले ही आपको बताती जाएगी कि मैं लिस्ट 1 शुरू करने जा रहा हूं जिसमें कॉमन एनाग्राम्स है, या मैं लिस्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं जिसमें कि कॉमन व्यक्तियों के, वस्तुओं के नाम है। यह आपको पहले बता दिया जाएगा। और जैसा मैंने बताया, ये पूरा प्रोसेस हम 20 बार दोहराएंगे। स्पष्ट सी बात है, 10 कॉमन एनाग्राम्स, 10 कॉमन नेम्स, तो 20 बार हो गए। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ निर्देश हैं जो आपको अपने प्रयोज्य को कंपल्सरीली देने ही देने हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको उसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना है मानसिक रूप से, उसको समझा देना है कि हम करने क्या वाले हैं। ये इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखे हैं फॉर द स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू वर्क इन इंग्लिश, दे कैन रेफर दीज इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैंने अपने स्वयं के बनाए हैं, क्योंकि ये वीडियो है, और ये जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है अगर वो अपने लैब में ये प्रयोग करना चाहता है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन ये है जी कि दिस एक्सपेरिमेंट इज टू बी कंडक्टेड ओनली इन द लेबोरेटरी सेटिंग्स। आप लैब में ही करें इसे, किसी घर पर, बाहर पर, किसी ऑफिस में बैठ के ना करें, अदरवाइज रिजल्ट आपके शुद्ध नहीं आएंगे। दूसरी बात, इस प्रयोग में जब आप एनाग्राम बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हर एनाग्राम में कम से कम 5 अल्फाबेट जरूर हो, और एनाग्राम बहुत डिफिकल्ट ना हो। कॉमन एनाग्राम बिल्कुल कॉमन हो। मैं आपको दिखाऊंगा, लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको, और ऑब्जेक्ट्स के नेम भी बिल्कुल कॉमन होने चाहिए। आप किसी भी भाषा में यह प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि एनाग्राम्स आप इंग्लिश में बनाएं। अगर आप मराठी हैं, तमिल हैं, मलयाली हैं, या बंगाल के हैं, असम के, कहीं के भी हैं, वट एवर कंट्री यू आर बिलोंग टू, you may belong to any country, you may watching my video, so you can prepare your anagrams in your own language so that your subject can understand not only the meaning, the internal aspect, the spirit behind the word. That's important. So you must prepare an anagram that contains at least 5 letters, and not more than 5 letters. It should be of 5 letters. Then, before conducting the experiment, you must wear the white coat. It's very important.
follow all the protocols, instructions and procedures of laboratory. Form a workable rapport with the subject before starting the experiment. Brief the subject about the experiment. No deception in this experiment. And follow the Helsinki Declaration because you are dealing with the human subjects. Now, this is the response sheet. Blank response sheet with the scoring of the common anagram, and this is same blank sheet for the scoring of the common objects names, the list 2 anagram. First column serial number, second column stimulus anagram, first column serial number, second column stimulus anagram, third column response, fourth result, and the fifth column is the reaction time. Now let us watch a small demo video where I had tried to show you how to conduct the experiment. आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि डियर फ्रेंड्स, जो ये प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग केवल आपको दिखाने के लिए किया गया है। आपको डिट्टो ऐसे नहीं करना है, आपको समझ लेना है, फिर आपको अपने लैब में जाकर के इन सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे निर्देश और सारे लैब के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं प्रयोग। तो हम प्रयोग के लिए तैयार हैं। जो डेमो एक्सपेरिमेंट हमने इस साइकोलॉजी लैब में किया, अभी हमारे प्रयोज्य को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है और अभी आपकी स्क्रीन पर लिस्ट 2 दिखाई दी, फिर लिस्ट 1। इसमें मैंने केवल 6 एनाग्राम्स लिए हैं, ये केवल डेमो के लिए। और लगातार जितने भी निर्देश हमें देने हैं स्पष्ट रूप से सब्जेक्ट को यहां पर दिए जा रहे हैं, जो आपको भी ऐसे ही करना है। Are you ready? Yes. तो स्टार्ट कर दें? Yes. प्रयोग शुरू हो चुका है। देखिए कि लिस्ट 1 इस कागज के नीचे छुपी है, इस पर एक फ्लैप लगा है। एक्सपेरिमेंटर फ्लैप को ओपन करता है, सब्जेक्ट उसे देखता है और साथ में एक्सपेरिमेंटर साइमल्टेनियसली अपने स्टॉप वॉच को चला रहा है। यही काम आपको करना है। जैसे ही फ्लैप खुलता है, पार्टिसिपेंट को एनाग्राम को देख करके उसे एक मीनिंगफुल शब्द में बनाना है और वही एक्सपेरिमेंटर को उसे बताना है। इस दौरान एक्सपेरिमेंटर अपने रजिस्टर में या रिस्पॉन्स शीट में करेक्ट एनाग्राम का जो वर्ड बना है वो नोट करेगा और उसको मीनिंगफुल वर्ड बनाने में कितना समय लगा, जिसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं, वो नोट करेगा। देखिए ये रिएक्शन टाइम चल रहा है और ये उन्होंने इसको अपने रजिस्टर में या रेफ नोटबुक में, जहां डेटा कलेक्शन शीट है, वहां पर उन्होंने नोट किया है। इस प्रकार आपको सारे के सारे एनाग्राम्स सब्जेक्ट के सामने प्रस्तुत करने हैं। हर एनाग्राम के बाद 2 मिनट का आराम उसको देना है। अभी हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जैसे पहली लिस्ट में किया था वैसे ही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। स्टार्ट होते ही आपको फ्लैप हटाना है, 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे और आपको शुरू कर देना है। सिंबल वर्ड जैसे ही करेक्ट वर्ड होगा आप यस कर देना, टाइम स्टॉप कर देना। ठीक है, समझ में आ गया? अभी आपने जाना कि प्रयोगकर्ता ने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस दिए। वो इंस्ट्रक्शंस क्या थे, वो निर्देश क्या थे? वो ये थे कि उन्होंने कहा कि भाई अब मैं आपके सामने लिस्ट 2 प्रस्तुत करने जा रही हूँ और सारा जो प्रोसेस है, जो पहले हमने लिस्ट 1 के साथ किया,
वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया हम लिस्ट 2 के साथ दोहराएंगे। अर्थात एक एक एनाग्राम आपको दिखाया जाएगा, आपको उसका मीनिंगफुल शब्द बनाना है, इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। हर प्रयास के बाद आफ्टर एवरी ट्रायल यू विल गेट 2 मिनट रेस्ट। दीज वर द इंस्ट्रक्शंस। नाउ सी कैसे फ्लैप हटाया जा रहा है। ये नोट्स एनाग्राम है, इसका सही आंसर मीनिंगफुल वर्ड बनेगा स्टोन, और शायद सब्जेक्ट ने सही इसका उत्तर दिया है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटर ने उसे नोट किया है। हाँ, अगर सब्जेक्ट किसी भी एनाग्राम का 30 सेकंड के अंदर रेडी? यस। रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है तो आप उसको अगले एनाग्राम पर ले जा सकते हैं, और रिएक्शन टाइम वाले कॉलम में आप उसमें 30 सेकंड भरेंगे। देखिए कैसे सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये एनाग्राम आपको दिखाई दिया। अब एक एक करके एनाग्राम आपको प्रस्तुत किया जा रहा है सब्जेक्ट के सामने। दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट and I suppose you could get the nitty and gritty of the experiment. Now let us move to the calculation part of the experiment. Thank you for participation. देखा आपने किस तरह से प्रयोगकर्ता एक्सपेरिमेंटर सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन देता है, फिर उसे एक चार्ट पर उसने जैसे दिखाया, एक छोटा सा फ्लैप काट के लगा रखा है, लिस्ट नीचे रखी है, जैसे फ्लैप उठाता है साथ में आपने देखा कि उन्होंने क्या किया, स्टॉप वॉच, अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच चला दी और उस बच्चे से पूछ रहा है कि बताइए इस एनाग्राम से क्या वर्ड बनता है। बच्चा रिस्पोंड कर रहा है, प्रतिक्रिया उसको दे रहा है, और वही प्रतिक्रिया, वही जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, रिस्पॉन्स शीट जो आपके सामने भरी हुई दिखाई दे रही है, इसमें नोट करता है, सारी चीजें नोट करेगा। स्टिमुलस एनाग्राम क्या था, क्या रिस्पॉन्स दिया, रिजल्ट क्या रहा और कितना रिएक्शन टाइम रहा। यह आपने अच्छे से देखा। मुझे लगता है कि इस प्रकार देखने से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। जैसे मैं मानकर चल रहा हूं कि ये जो लिस्ट आपके सामने है, ये उस प्रयोगकर्ता ने भर के हमें दी है, पर यह हाइपोथेटिकल है, असली प्रयोग नहीं किया गया। आपको केवल दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए यह प्रयोग किया गया है। तो अब देखिए, मिनिमम आपको 10 एनाग्राम्स एक लिस्ट में रखने। मैंने जो प्रयोग दिखाया उसमें केवल मैंने 6 ही रखे थे। मेरा भाव है आपको समझाने का। और इसमें देखिएगा कि जो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस एनाग्राम्स हैं, हमने इसमें नोट करके बताए हैं, साथ साथ में क्या रिजल्ट रहा। अगर टिक है तो समझ लीजिए सक्सेसफुल, और अगर क्रॉस है तो समझ लीजिए अनसक्सेसफुल। पर यह ध्यान रखिए, जिसमें व्यक्ति विफल होता है उसके सामने मैक्सिमम समय जो आप रिएक्शन टाइम लिखेंगे वो 30 सेकंड का लिखेंगे, और जो रिएक्शन टाइम है, प्रतिक्रिया काल है, वो जो उसका होगा जिसमें वो सफल होता है, वही प्रतिक्रिया काल आपको लास्ट कॉलम में, जैसे आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, वही आप लिखेंगे। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको प्रयोग करना आ गया है और आपने ये शीट भर ली है। आगे याद रखना, फिर हमें दूसरी शीट भरनी है। यानी कि मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने कॉमन एनाग्राम से प्रयोग कर लिया और कॉमन ऑब्जेक्ट्स, नेम और थिंग्स का भी प्रयोग आपने कर लिया। नाउ यू कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट एंड यू हैव फिल्ड अप दीज रिस्पॉन्स शीट्स एंड यू हैव डेटा विद यू इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सेस and the reaction time. These are the two most important things which we are going to analyze for the result, and on the basis of these only we are going to test our hypothesis. So now we will go for the calculations. What we need to calculate is, first we have to calculate the ART1 and ART2. What is ART? Average reaction time for the list 1 and average reaction time for the list 2. So you have to calculate this, and you have to calculate the number of correct responses in the list 1 and the number of correct responses in the list 2. List 1 contains the common anagrams, list 2 contains the name of the known objects, things, or the person or the people.
So it is here clearly visible that the ART1 means average reaction time for the common anagram list is 18.973 seconds, whereas the ART2 average reaction time for the second list is 15.328. Now next step is you have to calculate the difference between the ART1 and ART2. So the difference is 3.645 seconds, and this is positive one. This means ART1 is greater than the ART2. What does it indicate? We will discuss in the discussion part. The second one is the number of correct responses. If you look closely, you will find that for the list 1 there were only 4 correct responses, and for the list 2 there were 5 correct responses. Remember, this is hypothetical data. So what these results indicate? ये जो परिणाम हमारे आए ये क्या दिखाते हैं? लिस्ट 1 का और लिस्ट 2 के जो एवरेज रिएक्शन टाइम का अंतर, लिस्ट 1 के एवरेज रिएक्शन टाइम का ज्यादा होना, लिस्ट 1 में कम रिस्पॉन्स ठीक होना, लिस्ट 2 में ज्यादा रिस्पॉन्स ठीक होना, ये क्या इंडिकेट करता है? ध्यान रखिए, हमने यहां पर क्या किया, जो कॉमन एनाग्राम की लिस्ट थी उसके माध्यम से हमने सब्जेक्ट के मन में एक अनसर्टेन सेट तैयार किया, और जो नॉन ऑब्जेक्ट और थिंग्स थी उसके माध्यम से हमने सब्जेक्ट के अंदर एक सर्टेन सेट तैयार किया। और हमारी उपकल्पना यह थी कि अनिश्चित सेट की अपेक्षा निश्चित सेट में जो कम समय लगता है और एनाग्राम का प्रत्यक्षीकरण करना आसान होता है, और यही चीज हमारे दोनों प्रयोग से साबित होती है। यानी कॉमन एनाग्राम्स के रिस्पॉन्स में व्यक्ति थोड़ा समय ज्यादा लेता है और सर्टेन सेट में कम समय लेगा और उसका रिस्पॉन्स ज्यादा ठीक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आवर हाइपोथेसिस इज रिटेन्ड, और हमारी उपकल्पना सही साबित हुई। यहीं पर हमारा प्रयोग समाप्त होता है। दोस्तों, ये मेरे रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने लिया, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई जिज्ञासा आपके अंदर हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी जिज्ञासाएं, प्रश्न इससे संबंधित मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सुझावों का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो औरों को बताएं, कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं, और आपको बताना है कि मेरे वीडियो के कंटेंट्स आपको कैसे लगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।